initially, my initial idea was that I would try to talk about storytelling in general. Okay, what is it? How can you guys become part of it if you want to? Etc. etc. Initial questions, because being a storyteller myself, we to extreme lengths to explain it to people, but at times लोगों को समझ में नहीं आता, confusion हो जाती है, and there's a lot of things that happen. So I don't know how many people are. Okay, Ahmed is watching me. Hi Ahmed, you live in Lahore. I wish you would have been here. And there are a lot of people, a lot of my friends actually सब isolation में आ गए हैं, तो जो भूल गए थे सबको मैं याद आ गई हूँ. A lot of people are actually, hello Samara. A lot of people are like texting and calling, etc. So I don't know, like you guys can tell me how life is going on in isolation. Like my partially isolated in general, I can say, because I am an animal rescuer. तो हम घर से बाहर भी निकल रहे हैं, and we other people who are going and taking animals out of their cages, लोगों को बंद करके चले गए हैं. You can check the pages of ACF, IPS, जो दो shelters हैं सब कराची में. I'm thankful कि कराची में अच्छी shelters हैं. And we have ARTS, who is a animal rescue and transportation service. उनके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं. तो before starting the storytelling thing, I just want people to know कि जो घर के बाहर आपके एनिमल्स हैं उनको खाना दीजिए, एंड बिकॉज दे आर वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन अस. रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं, शॉप्स बंद हो गई हैं. इट्स अ वेरी वेरी बैड कंडीशन. आई सीन इट फ्रॉम माई आइज. जो कराची की अगर हम बात करें तो एम्प्रेस में, लाहौर की बात करें तो टॉरेंटन मार्केट में एनिमल्स को बंद करके चले गए हैं, और लिटरली हम शटर्स खोलते हैं, उनकी डेड बॉडीज अंदर से निकल रही हैं, सफोकेट हो गए हैं. इट्स अ वेरी वेरी टेरिबल एंड बैड सिचुएशन. So yeah, be kind to the beings around you. That would be great to know. अच्छा, तो since काफी टाइम मेरा इसी में चला गया है to see कि start कैसे होता है everything. तो yeah, let's begin with the storytelling things. मैंने कुछ questions mark कर लिए थे that are in general that people ask, and that would, I guess, briefly अगर मैं उनको explain करूँ, that would have been good. And please continue on drinking water. It's very very important, especially these days. हमें hydrate रखना बहुत ज़रूरी है. Okay, so सवाल नंबर 1, storytelling क्या है? If you Google the internet, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी. You have some very technical definitions of it, which I back those definitions. Definitions बिल्कुल ठीक है, but we just want to know what storytelling is. उनको नहीं समझ में आता है, and उनके लिए मोटे-मोटे अल्फाज बड़े मुश्किल है समझना. आसान ज़बानों में आपकी एक्सपीरियंसेस, आपकी ऑब्जर्वेशंस, जो आपके साथ हुआ है या किसी और के साथ हुआ है, या आपने देखा है या आपने पढ़ा है, या आपने एक्सपीरियंस किया है, या इवन आपने सोचा है, बिकॉज फिक्शनल स्टोरी टेलिंग भी होती है. उन सब चीज़ों को, उन सब वाक़यात को, एक्सपीरियंसेस को, ऑब्जर्वेशंस को एक कहानी में बयान करना स्टोरी टेलिंग है. एज सिंपल एज दैट, राइट? अब आप कहकर भी स्टोरी टेलर हो सकते हैं, आप कहानी लिखकर भी स्टोरी टेलर हो सकते हैं, आप एज अ फिल्म मेकर भी. filmmaker, I do believe that person is storyteller in general as well, because वो भी अपनी एक कहानी अपनी फिल्म के थ्रू बयान कर रहे हैं, right? So we talk about in general कराची में भी, इस्लामाबाद में भी है, तो पाकिस्तान में overall open mic sessions काफी जगह होते हैं. So a common question that I have received from people is that what is open session? I work with an organization called Communita, and Communita कभी भी open mic का word use नहीं करता. What's the difference? हम ये क्यों नहीं कहते कि हमारा open mic यहाँ हो रहा है, instead of we use the word storytelling. Why is that?
रीज़न बीइंग कि ओपन माइक में इट्स सिंपल एज दैट, इट्स एन ओपन माइक एज द नेम सजेस्ट। आप स्टोरी टेलर हो ना हो, यू कैन कम एंड यू कैन जस्ट शेयर योर स्टोरी, राइट। अगर मैं सिंपल आऊँ और मैं एक सिंपल सी एक चीज़ बयान करूँ कि मैं घर से बाहर निकली है, मैंने देखा एक बच्चा समोसे बेच रहा है, that's hi Cinderella, so that's a thing. Ghazala, I mean, yeah, I should say hi to people. Ghazal, I'll go back to the names, and if I miss saying anybody hi, so sorry about that. Danish is actually asking that, yes, yeah, I would come to that as well. I'll just explain this thing and फिर मैं ये वाले क्वेश्चन पे आती हूँ कि या तो ओपन माइक में आप आते हैं, आप अपनी बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मैं घर से बाहर निकली, मैंने एक समोसे बेचने वाला बच्चा देखा है, मगर तमहीद बात, ठीक है, कि मैं सुबह उठी, मौसम ऐसा था, मेरा समोसे खाने का दिल चाह रहा था वगैरह वगैरह, तो the scenario around it is basically storytelling जो लोगों को engage रख सके। When it comes to the marketing tool, as Dani suggests, I think storytelling is actually a marketing tool that जो हम हर जगह से यूज करते आ रहे हैं। कहानियों से हमारा ताल्लुक बड़ा पुराना है। Any religion that you believe, अगर हम religious scriptures की तरफ जाते हैं, तो religious scriptures mainly focuses on stories, right? अगर हम if you talk about the Holy Book Quran, तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, everything is explained in the form of a story. You have वाक़यात of so many go to books of other religions as well, and you would see the same thing कि चीज़ों को कहानी के थ्रू बयान किया गया है जो लोगों का इंटरेस्ट ग्रैब करती है। The same thing जो हम देखते हैं आज एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में, ब्रांड्स में, मार्केटिंग में, that is what they do. They are particular targeted marketing and bad majorly, जहाँ पे people are made to think that ये चीज़ ऐसे होगी, ऐसे करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और लोग उसको फॉलो करते हैं। एक बैड मार्केटिंग की एग्जांपल मैं आपको दूंगी, बट वो अच्छी स्टोरी टेलिंग है जो चल रही है, दैट इज फेयरनेस फेस, ठीक है। उसकी एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ बिकॉज वो काफ़ी हमें नजर आती है, और पीपल हैव सीन द एड्स। सो व्हाट डज फेयरनेस फेम टेल यू? इट जस्ट वीव्स द स्टोरी अराउंड, ठीक है, कि अगर आपका रंग गोरा है तो आप अच्छी शेफ भी हैं, आप होस्टेस भी बन सकती हैं, आप एक अच्छी बीवी भी हैं, आप एक अच्छी बेटी भी हैं, आप प्रोफेशनली एक बहुत, इन जनरल द फोकस इज प्रोफेशन, मोस्टली प्रोफेशनली आप एक बहुत कामयाब खातून हैं अगर आपका रंग गोरा है, राइट। दिस इज मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट गोज अराउंड विद इट, कि हमारे आती थी कि भाई वो शादी हो जाएगी, ये भी एक तरह के एड्स हैं कि बट डेफिनेटली एक बड़ी तादाद में खवातीन की जो कि प्रोफेशनल है, तो उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा शिफ्ट किया, उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, शादी से हटते हैं, और पर्टिकुलर ब्रांड्स इन फेयरनेस स्कीम जहाँ पे खवातीन को प्रोफेशनल दिखाया गया है, बट कहानी वहीं की वहीं के रंग गोरा करना, राइट। So it's an example of bad storytelling tactic, but a bad message, but जो टेक्निक यूज कर रहे हैं ना वो चली है, तो फेयरनेस स्कीम्स बिकती हैं, फेयरनेस स्कीम्स चलती हैं, लोग लेते हैं, राइट। यहाँ की कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप ले लें, दे आर पर्टिकुलर ब्यूटी प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर यू वुड फाइंड आर्टिकल्स जो बैन हो चुकी हैं फ्रॉम सर्टेन कंट्रीज, जहाँ पे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जाती हैं, दे आर बैंड, कि वहाँ पे कुछ इसमें कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं दैट कैन एक्चुअली जस्ट फॉर योर स्किन, तो स्किन ही नहीं बचेगी तो कहाँ से आप गोरे होंगे, राइट। बट so these are the examples। हम रमजान आने वाला है, you would find the same thing, आप कुकिंग ऑयल के पीछे लोग भाग रहे हैं, ये तो what they do is एक कॉमन थीम पकड़ी जाती है, ठीक है, जो स्टोरी टेलिंग का एक सही तरीका भी, आप एक कॉमन थीम पकड़ते हैं, लोगों का इंटरेस्ट देखते हैं और अराउंड स्टोरी क्राफ्ट करते हैं। तो हमारी कॉमन थीम रमजान की होती है कि रमजान है, फैमिली इज अ कॉमन थीम एज वेल, कि हमारे खानदान साथ बैठेगा, सब मिलकर खाएंगे, और खाना कैसे बनेगा जी, कुकिंग ऑयल में बनेगा, राइट। तो दे वुड वीव द स्टोरी अराउंड इट, सो दैट्स अ फॉर्म ऑफ गुड मार्केटिंग। बट मुझे सिर्फ ये एतराज हो रहा है कि आपको नाचना जरूरी नहीं है कुकिंग ऑयल बेचने के लिए, उसके बगैर भी बेचा जा सकता है। So yeah, so yes, there's a lot of the things that going on,
research area that how marketing can manipulate people and how storytelling can be a positive thing and can be a negative thing as well, right? अच्छा, दूसरा सवाल क्या था? Yes, the terms which are being used. तो स्टोरी टेलिंग में कॉमन टू टर्म्स, जो लोग स्टोरी टेलिंग करते हैं उनके लिए कॉमन टर्म्स होती हैं स्टोरी टेलर, जो कि सिंपल स्टोरी टेलिंग करते हैं। फिर एक होते हैं स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट, राइट, जो कि एग्जाम्पल अगर मैं एक्चुअली आपको एग्जाम्पल में, तो बटन पोइट्री इज द बेस्ट एग्जाम्पल आई कुड गिव एट दिस मोमेंट, जहाँ पे अ पर्सन इज स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट, यानी एक ऐसी कहानी, एक ऐसी पोइट्री जो राइम करना जरूरी नहीं, ये आम बिल्कुल जबान में एक्सप्लेन करूँ, ऐसी स्टोरी, ऐसी पोइट्री जो राइम करना जरूरी नहीं है, उसको हम यूजुअली स्पोकन वर्ड कहते हैं, यानी उसके बयान करने का तरीका, जो अभी narrating the story, but it is poetry in general. Okay, Danish said you need to say it should be a concept-based storytelling with a message. Yeah, it is. Because you see, as I said, you can misuse it for I can give you like, ये बात मैं spoken word वाली कर रही थी, मैं उसी से एक example देती हूँ। I did a spoken word that was based on the victims of abuse. वो मेरा spoken word था, and the whole idea, जो मैंने story इसके against weave की थी, तो मैंने कि अगर एक बच्चा जो कि अब्यूज का शिकार हुआ है, इट्स अ ट्रिगर वार्निंग एवरीबडी, मैं इस बात को बस 2 मिनट में खत्म करूंगी, सो दैट इफ एनीबडी इज ट्रिगर्ड बाय दिस देन दे कैन कंटिन्यू ऑन वाचिंग इट। तो बस छोटी सी बात करके मैं इसको रैप अप करूंगी ये वाला टॉपिक को। I did a spoken word about a person who suffered from child abuse, and उसने अपने perpetrator को, जिसने उसको abuse किया था, abuser को उसने पकड़ लिया है, and now वो उससे communicate कर रहा है, ठीक है, अब वो बड़ा हो गया है, वो बंदा है बंदी, and they have grown up and they are basically talking to their abuser in general, तो वो एक conversation है, communication है। Now if you see there were 2-3 people later on Facebook page पे कम्युनिटी आके, तो then people came, there was some said कि it's not good, आपको इस चीज के बारे में पब्लिकली करनी चाहिए। So जो दानिश वाली बात थी वो यही थी कि if you I do appreciate कि आप इन चीजों के बारे में बात करें in a safe setting, in a safe environment, but it depends how you weave the story around it. हम जो खबरें पढ़ते हैं, इस तरह की ट्रिगरिंग खबरें, अक्सर लोग अपना टीवी बंद कर देते हैं, वो नहीं देखते। I would actually be honest here that sometimes I see those news and I had to switch off my TV, or had to just change the website or just browse through it, because it's something which it gets to your head at times. I would agree, but message पहुंचाना है, ये बात लोगों को बतानी भी है, तो how would you do that, right? विद द पॉइंट कि लोगों को ये ट्रिगर ना करे, ये कोई ऐसी चीज ना हो कि अगर आपकी ऑडियंस में कोई इस तरह का इंसान बैठा है, वो हैज बिकम अ विक्टिम ऑफ इट, वो ट्रिगर ना हो, राइट? सो यू हैव टू ट्राई टू बी वेरी सेंसिटिव अबाउट इट, यू हैव टू वीव एंड क्राफ्ट योर स्टोरी दैट डजंट यूज पर्टिकुलर ट्रिगर्स, themes or words in general that might get to a person's head, right? So that's the whole art of storytelling, is कि आप जितने बेहतर तरीके से उसे, इतने अच्छे को जो कि बताना भी जरूरी है, बता सकें, right? Can storytelling be used in therapy? Yes, it is, and I believe it does happen in a lot of countries. Pakistan में I would be honest, I don't know कि कहीं अगर storytelling as a therapy use होती है, तो if somebody knows कि use होती है, तो please you can comment down so that other people know, and I know myself as well. But yeah, it could be used as a form of storytelling. बहुत सी जगह पे हम लोगों से बात करते हैं, and we can लोग अपनी कहानियों को बयान नहीं कर सकते,
the same story that I'm talking about, when I went outside I just went out for like 5 to 10 minutes. ये story करने के बाद मैं बाहर गई थी, and there was a lady who just came to me, who was part of the session, and she asked me that were you victim? And I said no. So then we had a small communication about it, and then she told me that she was a victim, and this was the first time she heard somebody talking about it, and she through the whole session and she listened, right? So yeah, and what entailed with that, she actually got the courage that she was like, I never got the courage to out my abuser. Okay, she's a grown-up lady, she's a professional one, and she's like, I never had the courage to out my victim, out my abuser. The way you were describing it, or the way you empowered me, like मैं हमेशा तसव्वुर करती थी, बट आपने जिस तरह बताया सिचुएशन में, मैं अपने आप को बहुत ही पावरफुल इंसान तसव्वुर करी थी कि यार अब मैं जो हूँ ना, I have the whole power, and that person with my abuser doesn't have the power. So now I have the courage to go and out my abuser. I have the courage to go and talk about it in front of people that this person did this in that particular amount of time with me, right? So yes, हम इस चीज़ को अगर सही तरह से इस्तेमाल करना चाहें तो it is, I guess, the most powerful thing that we can use. कर सकता है. Hi Saida, इसको teachers, you can particularly teaching is something very very it's a very divine profession, and उनके लिए इस चीज़ को इस्तेमाल करना बहुत अच्छा होता है, बहुत आसान होता है अगर उस चीज़ को बच्चों के दिमाग में या बच्चों की डेली लाइफ में चीज़ को किस तरीके से add on कर सकते हैं, because a lot of kids don't connect to their teachers, and I believe Vajee and Danish are working towards it कि ये चीज़ खत्म हो. Schools and education system needs घर का माहौल, स्कूल का माहौल, टीचर्स की ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें एक साथ हैंड इन हैंड चलती टू हैव अ बेटर फ्यूचर. There was one or couple of more things that I want to talk about. How should I craft the story? And that is something very important. थोड़े से मिनट रह गए हैं तो मैं बताऊंगी, और मेरे पास एक छोटी सी स्टोरी है that I will share as well, that I've written. How should I craft a story? Story की anatomy होती है, types होती हैं. You have a linear story, you have mentoring story, you have branching story, you have a explosive story, you have spiral story. बहुत तरह की stories होती हैं. I would suggest you guys to go and check out those types of stories. For the book, I can suggest you Anatomy of Story by John Truby. Ahmed Said, who is watching, suggested me that book. That helped me a lot. Go read that book, that would help you a lot in understanding the anatomy of story. और फिर आप ये समझ सकेंगे कि अच्छा मेरी स्टोरी इस टाइप की है तो मुझे इस तरीके से इसको वीव करना है, इस तरीके से मुझे इसको क्राफ्ट करना है. Okay, then what languages to use and audiences का reaction. ठीक है, कौन सी ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए स्टोरी करने में? तो you need to have a command over the language. अगर आपकी अंग्रेजी ज़बान पे कमांड नहीं है तो ज़बान में स्टोरी को करें, उर्दू में कर लीजिए, right? That's okay. Storytelling is not an elitist craft, something नहीं है, जो कि बहुत से लोगों का ख्याल भी होता है कि बर्गर लोग करते हैं, ऐसा नहीं है. Storytelling is for everybody, and आप इंग्लिश में भी स्टोरी कर सकते हैं, ठीक है, आप पूरी स्टोरी उर्दू में भी कर सकते हैं, आप पूरी स्टोरी. The only thing that I would suggest you कि आप अपनी ऑडियंस को देखें, आपकी ऑडियंस किस चीज़ में ज़्यादा बेहतर तरीके से रिएक्ट करेगी. There are particular kinds of audiences as well, ठीक है, जो कि primarily they are very comfortable with English storytelling, तो आप उस तरीके से कर लीजिए. If there are audiences या इंस्टीट्यूट जहाँ पे इंग्लिश वगैरह का ज़्यादा कॉन्सेप्ट है या वो चीज़ ज़्यादा अप्रिशिएट की जाती है, दैट यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर ऑडियंसेस रिएक्शन, राइट, टू स्टे लॉन्ग, राइट, आपको आगे से नहीं मिलेगा. आई वुड नॉट नेम द इंस्टीट्यूट हियर, बट देयर वाज एन इंस्टीट्यूट वेयर आई वाज कॉल्ड एंड आई रिसाइटेड Sylvia Plath's two of the poetries, and it bombed. No reaction at all. To the point कि मुझे सेशन रोकना पड़ा, मुझे कहना पड़ा कि अगर मुझे ये आवाज़ें इधर उधर से नहीं आएंगी, नहीं बंद होगी तो मैं कंटिन्यू नहीं करूँगी, राइट.
Why? Because I don't entirely blame those people. I don't entirely blame that institute or the students because उनका exposure नहीं है English poetry से, and it should not be assigned to anybody at this point. They were very comfortable with Urdu poetry and mushairas and everything, and Urdu storytelling. That's good. Do that. It's okay. आप slowly दूसरी languages के साथ introduce करवा सकते हैं. Yes, an audience का reaction एक बड़ा मसला होता है इसका कि लोगों को देखते हैं स्टोरी भूल जाते हैं, राइट? इट्स ओके, इट हैपेंस. मैं भी अपनी कहानी में से बहुत से लफ्ज़ इधर से खा जाती हूँ, तो इट्स ओके. एक आसान तरीका ये होता है कि यू डोंट वॉच द आई, यू वॉच द फॉरहेड. दैट्स अ गुड वे. दैट आप आंखों को ना देखें. अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहाँ से देखें, इधर से. दैट्स गुड. और यू कैन प्रॉब्ली जस्ट कीप ऑन मूविंग, लाइक मेक अ डब्ल्यू, like उसको देखा, so that you don't connect with somebody else, right? कुछ लोगों के साथ होता है कि उनकी आंखें एक जगह पे फिक्सेट हो जाती हैं, and they continue on doing this. जब आप स्टोरी सुना रहे होते हैं, आपको पता होता है आपकी आंख एक जगह फिक्स हो गई है, so you try. वही है कि आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने से आएगा कि जब आप एक जगह फिक्सेट हो जाएंगे, then just slowly एक बंदा है तो इस पे हॉप करने की कोशिश करें, फिर यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करें ड्यूरिंग द स्टोरी. मिरर्स आर द बेस्ट थिंग. अगर आपको कोई घर में अपना या कोई फ्रेंड या whoever that you have in your family जिनके पास इतना टाइम है कि वो आपकी कहानी सुन सके, तो आप उन्हें सुना दें. दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, बिकॉज उनका एक रिएक्शन अगर जो आपको मिलेगा बड़ा ऑनेस्ट रिएक्शन होगा. उनके फेस के रिएक्शन, फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह चेंज हो जाएंगे. देन यू वुड रियलाइज कि यार मेरी स्टोरी कितने पानी में. Okay, so I will just read some comments and then I guess there are a couple of minutes left. I have one story that I've just written. I just wanted to share it. Or internet is disturbing the continuity of the session. Hafsan, sorry, I have rahega इस page पे, तो you can watch it again and you can just leave some comments if you have, and I would see and I would respond to it. So एक बहुत लंबा comment है मतलब I've seen fictional storytelling, खासकर fantasy, science fiction, adult fiction, inspire people, create role models and empower audiences. So far, why is that in Pakistan people mostly don't favor these genres, especially in spoken word storytelling? Would love to hear your views on this and how can you promote such storytelling in Pakistan? Education. Educate करके हम स्टोरी टेलिंग को लोगों में बता सकते हैं. See, I don't entirely blame people because उनके लिए ये नया कॉन्सेप्ट है. इंडिया इज फार बियॉन्ड अस इन दिस. वहाँ पे स्टोरी टेलिंग सेशंस होते हैं, स्पोकन फेस्ट होते हैं, 7-8 घंटे लोग बैठ के सुनते हैं. एंड देन दे हैव लाइक स्टार्स. I don't know सबके नाम बहुत ज़्यादा, but they are like even the bahus in their dramas are now doing storytelling, right? So they have stars who are doing storytelling now. Sessions हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, सुन रहे हैं. तो we as an audience हमारी अंडरस्टैंडिंग कम है. हम अभी बहुत नए हैं इस चीज़ के लिए. अभी भी लोगों को स्टोरी टेलिंग का वर्ड समझ में नहीं आता. स्टोरी टेलिंग के लिए अगर आप कोई इवेंट रखते हैं तो लोगों को इंटायरली समझ नहीं आता कि इसमें क्या होगा, राइट? सो आई गेस द होल पॉइंट इज टू एजुकेट पीपल स्लोली बाय स्लोली, स्टेप बाय स्टेप. थोड़ा थोड़ा करके हम उनके साथ स्टार्ट करेंगे सो दैट दे वुड हैव थोड़ा सा आइडिया कि अच्छा ये स्टोरी टेलिंग है. दे वुड गो फॉर द टाइप्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, दे वुड गो द एनाटॉमी ऑफ द स्टोरी. So I guess it would take time, and for that I do believe कि अगर if we get some people who are renowned names, जैसे कि इंडिया में इस तरह अगर हमारे यहाँ कुछ renowned लोग या stars would be part of a storytelling session or would actually come out and narrate a story or would actually just offer us कि you write us a story and we would narrate it, that would help as well. सोशल मीडिया कैंपेनिंग कैन हेल्प एज वेल. हम अगर थोड़े थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स लगा रहे हैं स्टोरी टेलिंग के बारे में कि टिप नंबर 1 this is what storytelling is, tip number 2 that is what anatomy is, tip number 3 these are the types of storytelling. So yeah, I believe this काफी लंबी डिबेट है, but I guess with time that would be my best response at this के हमारी कॉम के साथ with time ही चलता है सब चीजें. तो with time slowly हम इस चीज को आगे कर सकते हैं. Okay, then The Hero with Thousand Faces. Yes, you can read this book as well. The Hero with Thousand Faces by Joseph Campbell. Yes, मैं इस book का नाम लेना भूल गई. Hafsa, thank you. Creating Character Arcs by K.M. Wyland. Another must read book.
So yes, you can go, you know, internet आपके पास है, वेले बैठे हैं आप घर में, तो देखें, you know, go and search. I myself would go on a longer rant, which time में making videos about a lot of things because अब मैं परेशान हो गई हूँ, and I guess this is something, you know, live sessions are something which I can actually, you know, talk to people about, you know, ये करना है, तो whatever I can, you know, this is a good outlet. इस वक्त जो चीज़ आपकी पेंडिंग है, जो चीज़ आपने नहीं की है, वो आप कर सकते हैं इस टाइम पे. ओके, सो 8:48 इट इज और मेरा पैर सुन हो गया है, तो हाँ, आई थिंक दैट्स प्रीटी मच. थोड़ा सा टाइम है भी मेरे पास. आई कैन प्राइमरली डू द स्टोरी थिंग. छोटी सी स्टोरी है, एंड वो मैंने अभी भी लिखी है, अभी भी नहीं लिखी है, मतलब 1-2 घंटे पहले लिखी है. और it's like अच्छा, what we do is that हम impromptu story करते हैं. We don't like read the story, but इस वक्त क्योंकि मैंने अभी भी लिखी है और मैं भूल जाऊंगी और मैं करती रहूंगी तो सेशन ज़ाया हो जाएगा, इसलिए आई एम जस्ट रीडिंग इट. And you know, it's a good small story. I hope people like it. क्योंकि बहुत अरसा हुआ मैंने देख के स्टोरी नहीं पढ़ी. I'm used to doing the impromptu thing. But अभी ये बिला उन्वान है, नहीं कहती ना, अगर मैं गलत कह रही हूँ मुझे करेक्ट कर दें. तो इसका नहीं है कोई उन्वान अभी, बट सही. सो हियर गोज. तो किस्सा यहाँ से शुरू होता है कि आई सॉ फेसबुक पोस्ट बाय अ डेस्परेट डॉटर कि सोसाइटी की मस्जिद का कोई सोसाइटी की दोबारा गलत हो रहा है. आई एम लाइक अ परफेक्शनिस्ट इन दिस. दोबारा करते हैं, आई एम सॉरी. हाँ जी. तो किस्सा यहाँ से शुरू होता है जब आई सॉ अ फेसबुक पोस्ट बाय अ डेस्परेट डॉटर कि सोसाइटी की मस्जिद को कोई बंद कर दे या अल्लाह, या वहाँ जाना अलाउ ना करे, बिकॉज अपेरेंटली हर फादर थिंक्स दैट नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन गोइंग टू द मस्जिद, एंड वो भी बगैर सुपर पावर्स. And then who can forget that मोहल्ले की आंटी coming to my door with a छोटी सी बेटी and then giving me a hug as a parting gift for no apparent reason. अब दूसरों को क्या कहना भाई, हमारे तो खुद के वालिदैन हार्ड टू हैंड. मतलब सारा साल इतनी ख्वाहिश नहीं होती उन्हें बाहर जाने की जितनी इस वायरस के आने के बाद हुई. शुक्र मोस्ट ऑफ द देसी पेरेंट्स आर अनेबल टू यूज स्मार्टफोन और एल्स ये सब मीटअप प्लान कर लेते. मतलब टाइम ये आ गया है कि पेरेंट्स को अगर बाहर जरूरी जाना है तो बच्चों की तरह उनको तैयार करना पड़ता है. मास्क रिमाइंड करवाना, ग्लव्स देना, पुटिंग सैनिटाइजर, तो कहना कि हाथ मुंह धो लिया आपने, बाहर की चप्पल को बाहर पहने, घर के अंदर मत लाएं. न्यूज़पेपर वाले से अखबार लेने के बाद भी हाथ साफ करना जरूरी है. How the tables have turned. Okay. So this auntie the other day was literally taunting her son कि वो उन्हें अपनी नानी अम्मी के घर नहीं लेके जाना. शायद ये नानी अम्मी से आखिरी मुलाकात हो. I still wish to tell that auntie कि नानी अम्मी का वायरस अगर आपको और आपके बेटे को लग गया तो आप, आपकी अम्मी और बेटा will travel to the afterlife together. आराम से बातें कीजिएगा. फिर अंग्रेज, जिनको हम आम ज़बान में कुफार कहते हैं, are trying their best to find a cure. इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद वो खुद इस वायरस पर काबू नहीं पा रहे. चाइना ने शुरू किया, यूएस ने शुरू किया, बायो वॉरफेयर, दज्जाल की साजिश, कयामत की निशानी, व्हाट्सएप की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एटसेट्रा एटसेट्रा. माना कि ये सब या इसमें से कुछ बातें सच हो सकती हैं, मगर फिर क्या किया जाए? अगर ये आलमी साजिश भी है तो उसका मुकाबला तो हमें ही करना है. वैसे तो वी एज अ नेशन डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन, etc. But coronavirus doesn't do that. कायदे आज़म के 14 नुकात, 23 मार्च, 14 अगस्त, इकबाल का ख्वाब, तो हमने यूनिटी पैदा नहीं कर पाया, मगर शायद ये वायरस हम सबको फासले पर रखकर भी यकजा कर. So be kind to yourself, be kind to others. घर में रहिए. एक टर्म लोगों ने बल्कि यू नो जय शेट्टी, अ वेरी फेमस मोटिवेशनल स्पीकर, इज टॉकिंग अबाउट कि सोशल डिस्टेंसिंग की बजाय फिजिकल डिस्टेंसिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज सोशली हम डिस्टेंस हो गए तो मजीद बर्बादी की तरफ चले जाएंगे. सो आई डू अग्री विद दैट. ये बड़ी एक अलग डिबेट है, बट या फिजिकल डिस्टेंस रखिए. यू नो मेक योर सेल्फ प्रोडक्टिव. लोगों से यू नो किसी तरीके से बात कीजिए. डू समथिंग प्रोडक्टिव. लुक एट द अंग्रेज यार, यू नो दे आर डूइंग
a lot of things. पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, न्यू टॉयलेट पेपर रोल से खेल रहे हैं, and they are making their pets learn to do things. So you have ample amount of time to do a lot of things. अच्छा, तो just थोड़े से मिनट रह गए हैं, just read the comments. Hafsa replied to Danish, okay, I believe that circle time should not be restricted only in early years but throughout, as it really helps students to break the ice and speak their heart. I do absolutely. Yeah, so but yes, that we want Canada again. I hope so. I'm just, I was actually very, थोड़ा सा शर्मिंदा as well कि वजीहा asked me before and मैं एक पाउंड अभी भी घर के आधा एक बाहर ही था because we were working with the animals. वो चीज़ अभी भी चल रही है. We still are trying to rehome as many animals as we could. Vajiha is one person I would want to take her name because she has came forward, which is kind to a person जिनको आप जानते हैं, who is known, who I'm sure she's बहुत सारे के साथ है. If she can do that, then please खुदा का वास्ता आगे आइए, adopt these animals. And I'm trying to be as light about it as possible because मुझे बहुत बुरा गुस्सा आया हुआ था बहुत दिन से और अभी भी आया हुआ है इन सब चीज़ों के ऊपर. बट आई एम ट्राइंग टू बी एज पोलाइट एज पॉसिबल विद पीपल के इंसानों की जान ज़रूरी है, जानवरों की जान ज़रूरी है, पौधों को भी पानी दे दिया करें, वो भी बहुत ज़रूरी है. तो ये सब चीज़ें ना एक साथ आती हैं, लाइक दीज प्लांट्स, एनिमल्स, फूड साइकिल हमारा पूरा जो अल्लाह ताला ने बनाया है हमारे लिए. देन अस ह्यूमंस हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं. अगर हमें से कोई एक चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी, प्लांट्स ख़त्म हो जाएंगे, फिर भी हम तबाही की तरफ चले जाएंगे. एनिमल्स ख़त्म हो जाएंगे, तब भी हम तबाही की तरफ चले जाएंगे, राइट. और इंसान ख़त्म हो जाएंगे तो डेफिनेटली ये पौधे और ये जानवर इंसानों पर भी डिपेंडेंट हैं. तो हम उनकी फूड सोर्स हैं एक तरीके से, तो उनको भी प्रॉब्लम है. So yeah, I guess there are just 5 minutes remaining for the session. 5 minutes में मैं और क्या बात कर सकती हूँ 5 minutes के अंदर? Did I had a question, something that I should? हाँ, एक चीज़ और. How should I craft a story? How should I craft a story? एक सवाल का जवाब मैंने कहीं लिखा था. How should I craft a story? There was one good word that I didn't, मैं भूल गई हूँ. Yes, याद आ गया. How should I craft a story? बस लास्ट 2 मिनट में बात करूँगी. The best way to craft a story is that theme बहुत ज़रूरी है, उसमें protagonist बहुत ज़रूरी है. Add dialogues, right? That's a good tip. डायलॉग्स ऐड करें, थोड़ी कम्युनिकेशन ऐड करें उसके अंदर. जो मैंने फील किया है वो ये होता है कि हम स्टेज की स्टोरी पढ़ रहे होते हैं, मैंने ये किया, मैं आ गया, तो बोर हो जाते हैं. अगर आप डायलॉग ऐड करेंगे, स्टोरी टेलिंग में हम इंटरैक्ट नहीं कर सकते लोगों के साथ, ठीक है, तो यू कैन नॉट डू दैट, बट इन्सिडेंसेस, थिंग्स जो लोग आपसे कनेक्ट कर कहानी उनके दिमाग में बनेगी. सो ऐड डायलॉग, दैट्स आई गेस अभी के लिए माय लास्ट टिप. So yes, thank you so much. This is my जो मैंने अकेले कंडक्ट किया है, वरना मैं ज्वाइन कर रही हूँ. तो आई नो जिससे मुझे एक फायदा हुआ. आई कनेक्टेड विद पीपल एंड दूसरा मुझे लाइव सेशन करना आ गया which is amazing because मैं खुद 1-2 दिन पहले जितना मैं रैंड पे जाऊंगी मैं लंबा, तो मुझे अब रियलाइज हुआ कि किरण आप कैसे जाती है रैंड पे, आपको लाइव करना आता ही नहीं. So I know how to do live now. You guys are doing an amazing job and जिन लोगों ने मुझे join किया, thank you so much. And if you have any other questions, आप नीचे comments में लिख दीजिएगा इसी live के, then I can go about and I can answer these questions for you. So yeah, distance maintain कीजिए, wash your hands, बैठिए खुदा के वास्ते, बाहर डॉक्टर्स, पुलिस वाले और डेंजर पे रहम कीजिए. And just be a helpful human being. That's all I can say. Thank you so much. Allah Hafiz. I hope I would meet you all. Thank you.